I am Dr. Ashok Kumar Saini, Associate, Associate Professor in Mathematics in BLJS College Tosam. Today I will deliver lecture on gamma function for the students of BA, BSc, 6th SEM, 3rd year on maths paper 3rd, maths paper 1st, real and complex analysis. Gamma function we have defined in earlier lecture beta function. Now we will define gamma function. The second Eulerian integral 0 to infinity e की power minus x की power n minus 1 dx, where n is greater than 0 is called a gamma function. Integral 0 to infinity e की power minus x की power n minus 1 dx, where when n is positive is called gamma function and is denoted by gamma n. Thus gamma n equal to integral 0 to infinity e की power minus x की power n minus 1 dx for n greater than 0. The quantity n is positive. जो quantity n क्या है, पॉजिटिव है but not necessarily integral. The quantity n is positive but not necessarily integral. Illustrations 1. Integral 0 to infinity x की power 0 e की power minus x dx is a gamma function and is denoted by gamma 7. Integral 0 to infinity x की power 3y 5 e की power minus x dx is a gamma function and is denoted by gamma 8y 5. Integral 0 to infinity x की power minus 1 by 5 e की power minus x dx is a gamma function and is denoted by gamma 4y 5. 0 to infinity x e की power minus x dx is a gamma function and is denoted by gamma 2. These are illustrations of gamma function. Now recurrence formula for gamma function. If n greater than 1 is any real number, then gamma n equal to n minus 1 into gamma n minus 1. This came in Kurukshetra University 2016. If n greater than 1 is any integer, then gamma n equal to n minus 1 into gamma n minus 1 equal to n minus 1 factorial. The proof 1. By definition, gamma n equal to integral 0 to infinity x की पावर n minus 1 e की पावर minus x dx. इसको बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करते हैं. माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस x हो गया. और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी है. माइनस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी माइनस n minus 1 x की पावर n minus 2 e की पावर minus x dx. इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स हैं. और ये आप माइनस बाहर ले लिया, x की पावर n minus 1 e की पावर minus x 0 to infinity प्लस n minus 1 इंटीग्रल 0 to infinity x की पावर n minus 2 e की पावर minus x dx is equal to 0 plus n minus 1 gamma n minus 1 by repeated application of L'Hospital rule. Limit x approach to infinity x की पावर n minus 1 e की पावर x 0 होता है. तो पहली चीज़ आपकी 0 होगी. 0 प्लस n minus 1 gamma n minus 1. तो therefore gamma n equal to n minus 1 into gamma n minus 1. Second part, as proved in part 1, we have gamma n equal to n minus 1 into gamma n minus 1. Changing n to n minus 1, we have gamma n minus 1 equal to n minus 2 into gamma n minus 2. Putting this value in 1, we have gamma n equal to n minus 1, n minus 2, gamma n minus 2. As n is any integer greater than 1, as
n is any integer greater than 1. Therefore n, n minus 1, n minus 2 are integers. As n is any integer greater than 1, therefore n, n minus 1, n minus 2 are integers. Repeating the above procedure, we have gamma n equal to n minus 1, n minus 2, n minus 3, n minus 4 and so on, 3 to 1, gamma 1. To find the value of gamma 1, since gamma n equal to integral 0 to infinity x की power e की power minus x, x की power n minus 1 dx. Therefore gamma 1 equal to integral 0 to infinity e की power minus x, x की power 0 dx is equal to minus e की power minus x 0 to infinity equal minus e की power minus infinity minus e की power 0 equal to 1. Putting gamma 1 equal to 1 in second, we get gamma n equal to n minus 1, n minus 2, so on, 1 equal to n minus 1 factorial. The gamma n equal to n minus 1 factorial remarks the value of gamma n can be easily evaluated if n is a positive integer greater than 1. Remarks 1. First remark, the value of gamma n can be easily evaluated if n is a positive integer greater than 1. For example, gamma 4 equal to 3 factorial equal to 6, gamma 5 equal to 4 factorial 24. The positive integer, if n is a fraction, then gamma n equal to n minus 1, gamma n minus 8, n minus 1, n minus 2, gamma n minus 2, n minus 8, n minus 2, n minus r, gamma n minus r. This process is continued till n minus r greater than 0, but n minus r minus 8 is negative. For example, gamma 5/2 equal to 3/2 into half, gamma half. Gamma 7/2 equal to 5/2 into 3/2 into half, gamma half. Gamma 9/2 equal to 7/2, 5/2, 3/2 half into gamma half. Relation between beta and gamma function. To prove that beta m equal to gamma m, gamma n, but a gamma m plus n, where m is positive, n is positive. So this is important from examination point of view. कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 2016, 8 MDU 2014, 8/5. Proof by definition, gamma n equal to integral 0 to infinity x की power n minus 1 e की power minus x dx. Put x equal to tz so that dx equal to t dz. Put x equal to tz so that dx equal to t dx equal to t tz. When x equal to 0, z equal to 0, and when x approaches to infinity, z approaches to infinity. Therefore from 1 we have gamma n equal to integration 0 to infinity tz की power n minus 1 e की power minus tz t dz equal integral 0 to infinity t की power n z की power n minus 1 e की power minus tz d into dz. So multiplying both sides by e की power minus t की power n minus 1, we have e की power minus t की power m minus 1 gamma n equal to e की power minus t की power m minus 1 integral 0 to infinity t की power n z की power n minus 1 e की power minus 2z dz equal integral 0 to infinity t की power m plus n minus 1 z की power n minus 1 e की power minus tz e की power minus 1 dz equal integral 0 to infinity t की power m plus n minus 1 z की power n minus 1 z की e की power minus tz plus 1 dz. Integrating both sides with respect to t between the limits 0 to infinity, we have integral 0 to infinity e की power minus t की power m minus 1 gamma n t dt.
0 to infinity t की पावर m plus n minus 1 z की पावर n minus 1 e की पावर minus t z plus 1 dz into dt is equal to integral 0 to infinity z की पावर n minus 1 0 to infinity t की पावर m plus n minus 1 है। इतनी रफ्तार में चाहिए हमें e की पावर minus t z plus 1 dt into dz। दोबारा करें, जस्ट इंटीग्रेट कर रहा है और क्या है इसमें, बाई पार्ट्स कर रहा है, दैट्स ऑल। आई थिंक देयर इज put t into z plus 1 equal to y, so that t equal to y बटे z plus 1 dt equal to dy बटे z plus 1 and t equal to 0 y equal to 0 and when t approach to infinity y approach to infinity, from second we have gamma n integral 0 to infinity e की पावर minus t की पावर n minus 1 dt 0 to infinity z की पावर n minus 1 इंटीग्रेशन 0 to infinity y बटे z plus 1 की पावर m plus n minus 1 e की पावर minus y dy बटे z plus 1 dz। इंटीग्रल 0 to infinity z की पावर n minus 1 z plus 1 की पावर m plus n इंटीग्रल 0 to infinity y की पावर m plus n minus 1 e की पावर minus y dy into dz। कर क्या रहा है ये देख, तो टेक्निकली क्या है, इंटीग्रेशन आ गया, ये इसकी वैल्यू पुट करता जा रहा है, और क्या है टेक्निकली कोई खास बात नहीं, रूटीन मैटर है। इंटीग्रल 0 to infinity z की पावर n minus 1 z plus 1 की पावर m plus n गैमा अंदर गैमा m plus n dz आ गया, तो गैमा n इंटू गैमा m, गैमा m है, ये गैमा m plus n कॉमन ले लिया। इंटीग्रल 0 to infinity z की पावर n minus 1 बटे z plus 1 की पावर m plus n dz। ये बीटा होता है, बीटा mn है, hence we have बीटा mn equal to gamma n बटे gamma m plus n। ओके, नेक्स्ट ये इम्पोर्टेंट है, प्रूव दैट गैमा हाफ इक्वल टू अंडर रूट पाई, M2 2005 में आया हुआ है। फर्स्ट बी सेल्फ प्रूव दैट बीटा mn इक्वल टू gamma n बटे gamma m plus n, पुटिंग m इक्वल टू n इक्वल टू हाफ, तो m भी हाफ n भी हाफ, तो इस फार्मूले में पुट करो बीटा mn इक्वल टू gamma n बटे gamma m plus n, तो बीटा हाफ gamma हाफ बटे gamma 1 बीटा हाफ इक्वल टू गैमा हाफ का होल स्क्वायर, गैमा हाफ का होल स्क्वायर इक्वल टू बीटा 1/2 इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर हाफ minus 1 minus x की पावर हाफ minus 1 dx। इंटीग्रल 0 to 1 बटे अंडर रूट x 1 minus x dx। put x equal to sin square theta, so that dx equal to sin theta cos theta d theta, when x equal to 0 theta equal to 0, when x equal to 1 theta equal to pi by 2, from 1 gamma half का स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से pi by 2 1 बटे अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, इंटीग्रल 0 से pi by 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, तो इंटीग्रल 0 से pi by 2 डी थीटा, तो थीटा 0 से pi by 2 तो pi by 2 इक्वल टू पाई, तो देयरफॉर गैमा हाफ इक्वल टू अंडर रूट पाई। ठीक, अब एग्जाम्पल्स हैं इसके, show that integral 0 to infinity e की पावर minus x square dx equal to under root pi by 2, and integration
माइनस इन्फिनिटी से जीरो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट पाई बाई 2। तीसरा इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सब्सटीट्यूशन मेथड है थोड़ा। लेट आई बराबर है फर्स्ट पार्ट 0 to इन्फिनिटी की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर को टी पुट करो तो 2x डी एक्स डी टी, तो डी एक्स डी टी बटे 2x डी टी बटे 2 अंडर रूट 2। और लिमिट्स देखते हैं, x 0 है t 0 है, x इन्फिनिटी पे जा रहा है तो t इन्फिनिटी पे जा रहा है। पुट करो वैल्यूज इंटीग्रल 0 से t। क्या किया हमने, स्क्वायर की टर्म है वो ख़त्म कर दी, की पावर माइनस टी डी टी बटे 2 अंडर रूट टी इक्वल टू हाफ बाहर आ गया, 0 to इन्फिनिटी की पावर माइनस टी की पावर माइनस हाफ डी टी इज इक्वल टू हाफ गैमा माइनस हाफ प्लस 1 इज इक्वल टू हाफ गैमा हाफ अंडर रूट पाई बाई 2। नेक्स्ट सेकंड, लेट आई बराबर इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू 0 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। पुट x बराबर माइनस अंडर रूट टी सो डैट डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बटे 2 अंडर रूट टी डी टी। वैन x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0 एंड वैन x अप्रोच टी माइनस इन्फिनिटी टी अप्रोच टी इन्फिनिटी। तो i बराबर इंटीग्रल इन्फिनिटी टू 0 ई की पावर माइनस टी डी टी बटे माइनस 2 अंडर रूट टी इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी की पावर माइनस हाफ डी टी इज इक्वल टू हाफ गैमा हाफ तो अंडर रूट पाई बाई 2। लेट आई बराबर इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू 0 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कंसीडर आई वन इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू 0 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। पुट x equal to minus t so that dx equal to minus dt when x equal to 0 t equal to 0 and when x approach to minus infinity t approach to infinity। तो I1 क्या हुआ, इंटीग्रल इन्फिनिटी टू 0 ई की पावर माइनस टी स्क्वायर माइनस डी टी इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी की पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी। therefore इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू 0 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फ्रॉम 1 we have I इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 0 to इन्फिनिटी की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स तो 2 टाइम इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो 2 अंडर रूट पाई बटे 2 बराबर अंडर रूट पाई। देयरफॉर इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट पाई। ठीक, ईजी है, कोई मुश्किल ना है इसमें, सिर्फ इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। सब्सटीट्यूशन मेथड है, इवेल्युएट दिस 0 to इन्फिनिटी अंडर रूट एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 to 3 डी एक्स अंडर रूट 3x माइनस एक्स स्क्वायर 0 to इन्फिनिटी एक्स की पावर एन की पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। आई ये ले लिया फर्स्ट पार्ट, एक्स क्यूब इक्वल टू टी एक्स टी की पावर 1/3 डी एक्स ये आ गया। वैन एक्स इक्वल टू 0 टी इक्वल टू 0 एक्स अप्रॉक्स टू इन्फिनिटी अप्रॉक्स टू इन्फिनिटी। तो आप इसकी सिंप्लीफिकेशन के बाद ये देखोगे 1/3 गैमा हाफ अंडर रूट पाई बाई 3 आ जाएगा। देयरफॉर अंडर रूट पाई बाई 3 आ जाएगा ना। फिर सेकंड पार्ट ये है, इसके फैक्टर बना लिए अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट 3 माइनस एक्स। अब x को 3t पुट किया हमने, dx इक्वल टू 3 dt। जब x 0 है t 0 है x 3 है t इक्वल टू 1 तो ये आ गया t की पावर माइनस हाफ 1 माइनस t की पावर माइनस हाफ dt। तो बिट्टा हाफ इंटू हाफ और ये गैमा m गैमा हाफ प्लस हाफ 1 अंडर रूट पाई बटे 1 इक्वल टू पाई।
देयरफॉर इंटीग्रल 0 to 3 dx बटे अंडर रूट 3x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई। लेट आई बराबर इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी एक्स की पावर n ई की पावर माइनस पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। पुट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू टी वाई ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू अंडर रूट टी वाई ए डी एक्स क्या है 1/2a अंडर रूट टी डी टी। वैन एक्स इक्वल टू 0 टी इक्वल टू 0 एंड वैन एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी टी अप्रोच टू इन्फिनिटी। तो आई क्या है इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी टी की पावर n/2 बटे ए की पावर n ई की पावर माइनस टी डी टी बटे 2a अंडर रूट टी इक्वल 1/2 ए की पावर n प्लस 1 इंटीग्रल 0 to n टी की पावर n/2 माइनस हाफ ए की पावर माइनस टी डी टी। तो 1/2 ए की पावर n प्लस 1 गैमा n प्लस n/2 प्लस हाफ। इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी एक्स की पावर n ई की पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स 1/2 ए की पावर n प्लस 1 गैमा n प्लस 1/2 एक्सप्रेस इंटीग्रल 0 to 1 एक्स की पावर p 1 माइनस एक्स की पावर q n dx इन टर्म्स ऑफ गैमा फंक्शन वेयर p q n ग्रेटर देन 0 एंड इवेल्युएट 0 to 1 एक्स की पावर 5 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 10 dx। तो लेट आई 0 to 1 एक्स की पावर p 1 माइनस एक्स की पावर q n dx। तो पुट एक्स की पावर q इक्वल टू टी एक्स इक्वल टू टी की पावर 1/q डी एक्स इक्वल टू 1/q टी की पावर 1/q माइनस 1 डी टी। वैन एक्स इक्वल टू 0 टी इक्वल टू 0 एंड वैन एक्स इक्वल टू 1 टी इक्वल टू 1। तो आई आपका 1/q बीटा p प्लस 1/q इंटू q प्लस 1 इंटीग्रल देयरफॉर 0 to 1 एक्स की पावर p 1 माइनस एक्स की पावर q की पावर n डी एक्स इक्वल टू 1/q बीटा p प्लस 1/q कॉमा n प्लस 1। तो इस पे फार्मूला यूज कर दो आप 1/q गैमा p प्लस 1/q गैमा n प्लस 1 बटे गैमा p प्लस 1/q प्लस n प्लस 1। कंपेयरिंग इससे 0 to 1 एक्स की पावर 5 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 10 dx विद दिस वी गेट p 5 है q 3 है n 10 है। तो पुटिंग p इक्वल टू 5 q इक्वल टू 3 n इक्वल टू 10 इन 1 इस 1 में तो 1 बटे 3 गैमा 2 गैमा 1 बटे गैमा 13 तो 1 बटे 396 आ गया। तो 0 to 1 एक्स की पावर क्यूब 1 माइनस एक्स पर 5 एक्स पर 5 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 10 डी एक्स इक्वल टू 1 बटे 396। तो इसी तरह आप इवेल्युएट करो 0 to 1 एक्स की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 a प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 डी एक्स गैमा m गैमा n a की पावर n 1 प्लस a की पावर m गैमा m प्लस n m डी 17/5 इम्पोर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट आई बराबर है ये x बटे a प्लस एक्स की पावर m माइनस 1 इसको रीअरेंज कर रहे हैं 1 माइनस एक्स बटे a प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स बटे a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। पुट x बटे a प्लस एक्स इक्वल टू z बटे n प्लस 1 वैन एक्स इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0 वैन x इक्वल टू 1 z इक्वल टू 1। डिफ्रेंशिएटिंग सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x ये सेकंड है विद रिस्पेक्ट टू x। तो a प्लस एक्स माइनस एक्स बटे a प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स डी जेड बटे a प्लस 1
डिफ्रेंशिएट करो, ये पुट जो पुट किया था तो डी एक्स बटे ए प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल डी जेड बटे ए इंटू ए प्लस वन फ्रॉम सेकेंड एक्स ए प्लस वन इक्वल टू जेड ए प्लस एक्स, therefore x a plus 1 minus x equal to a z implies x equal to a z bटे a plus 1 minus z. Now 1 minus x n plus x equal to 1 minus a z बटे a plus 1 minus z, a plus a z बटे a plus 1 minus z. सिंप्लीफाई करो 1 minus z बटे फ्रॉम 1 वी हैव आई, ये आई था, जेड में कन्वर्ट कर दिए, कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लिए, कोटे ए की पावर एन ए प्लस 1 की पावर एन 0 to 1 एक्स की पावर एम माइनस 1 माइनस जेड की पावर एन माइनस 1 डी जेड, और ये विद टाइम में आ गया तो दिस 1 बटे ए की पावर एन 1 प्लस ए की पावर एम गैमा एन बटे गैमा एम प्लस एन. इवेल्युएट करो दिस एक्स की पावर, खोल ले इसका, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 6 1 प्लस एक्स की पावर 12 डी एक्स इंटीग्रल 0 to infinity एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 12 डी एक्स माइनस इंटीग्रल 0 to infinity एक्स की पावर 6 1 प्लस एक्स की पावर 12 डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब 6 जमा 7 डी एक्स माइनस इंटीग्रल 0 to infinity एक्स की पावर 7 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 7 जमा 5 डी एक्स. तो बीटा 5,7 माइनस बीटा 7,5 0 आ गया. ठीक, तो इवेल्युएट दिस 0 to पाई बाई 2 साइन की पावर पी एक्स कॉस की पावर क्यू एक्स डी एक्स, पी ग्रेटर देन -1 क्यू ग्रेटर देन -1, तो आई ये है, तो साइन की पावर पी माइनस 1 एक्स कॉस की पावर क्यू माइनस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स की पावर पी माइनस 1 बाई 2 साइन कॉस स्क्वायर एक्स की पावर क्यू माइनस 1 बाई 3 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स. हाफ बाहर ले लिया, 2 गुना कर दिया, अब सब्सटीट्यूट करो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी, तो 2x साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी. जब x 0 है t 0 है, जब x पाई बाई 2 है t 1 है, तो ये आपका इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया. ठीक, ये बीटा p माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 क्यू प्लस माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू हाफ बीटा p प्लस 1 बाई 2 क्यू प्लस 1 बाई 2. इसको गैमा में कन्वर्ट कर दो, हाफ गैमा p प्लस 1 बाई 2 गैमा q प्लस 1 बाई 2 बटे इनका सम गैमा p प्लस 1 बाई 2 प्लस q प्लस 1 बाई 2. यही हमने प्रूव करना था. ठीक है, तो today we will stop here. Next we done duplication formula and further. Okay, so you can view this online lecture from college website name www.bljscollege.com. There you will find YouTube channel of college, and from there you can download, and if still there is any difficulty you can ask. If there is any question or query you can ask me, contact me. You are most welcome. Thank you. We will meet in the next lecture. Thank you.